Hello everyone, Vinita this side. Welcome back to my channel, Nagin Best Digital Learning. So as you know, in our previous video, we have completely understand what is actually given in the chapter Ishwaran the Storyteller. So now, let's begin with me with a short point that this is a story about Mahendra, a junior supervisor, and his cook Ishwaran. Foreman had to keep moving from place to place he ordered by head office, but he had fortunately an expert caretaker Ishwaran who cooked his meals, washed his clothes, and chatted with him at night. Ishwaran was very fond of reading Tamil thrillers during his spare time. As a result, he innovated his own thrillers and would tell about it to Mahendra. The latter used to hear patiently without finding any loopholes in the story. Actually, children, Ishwaran often in his stories narrated about elephants. For example, he told a story about how he paralyzed a mad elephant that had gone unconscious. He told that there were timber logs loaded on trucks. But if an elephant went mad, no Mahavat could control it. The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. Children and teachers ran helter and shelter to save their lives. The elephant was stunned when Ishwaran, then only a little boy, took a rod and hit at the elephant's third toenail. The secret was if the elephant is hit there, his nervous system was get paralyzed. Finally, one day talking about spirits of the ancestors, Ishwaran began to talk of ghosts, and literally we can say by this Ishwaran Mahendra was accepted that something was really uh, bad in their house. Some ghost was there. So the after that, at the end of the story, Mahendra never used to listen to Ishwaran's questions and finally decide to resign from his job and leave that haunted place. So it means we can say that we are not supposed to accept इस तरह की चीज़ें एक्सेप्ट करना it would be it would be the part of fullness. So जो किया महेंद्र ने, so let's start what actually is given here. Ishwaran the Storyteller by R.K. Lakshman. So in this story, job of Mahendra, what did he do? Mahendra was a junior construction supervisor. He was at the post of junior construction supervisor. His job was to supervise the work at a construction site. उसका काम था उस कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम होता था उसको सुपरवाइज करना, उसको देखना कि सब काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा. वंस द जॉब गुड वुड बी ओवर्स, एक बार जब एक जगह का काम खत्म हो जाता था, ही वुड बी ही यूज टू बी शिफ्टेड टू अनदर कंस्ट्रक्शन साइट. उसको दूसरी कंस्ट्रक्शन साइट पे शिफ्ट कर दिया जाता था. थर्स द नेचर ऑफ हिज जॉब वॉज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो ऐसे ही उसकी जो जॉब का उसका जो नेचर था, उसका जो काम था, उसका काम ही यही था. एक जगह सुपरविजन किया, वहाँ का काम खत्म हुआ, नेक्स्ट प्लेस पे गया. सो दैट वॉज द नेचर ऑफ हिज जॉब, to move from one place to another. I hope you will understand. So next, Ishwaran, amazing servant and entertainer.
we can say he was amazing servant. Now the detail was for Ishwaran. He was an amazing servant and a best entertainer for Mahendra. And in chapter we have listened that we can say Ishwaran was an asset for Mahendra. Mahendra's needs were simple as he was a bachelor. उसकी जो ज़रूरतें थी ना वो बहुत सिंपल सी थी क्योंकि वो बैचलर था. He had kept a servant named ईश्वरन for domestic work. तो उसने अपने घरेलू काम के लिए ईश्वरन नाम का एक सर्वेंट रखा हुआ था. And literally in this chapter it will be proved that really he was an great asset for Mahendra. ईश्वरन फॉलोड महेंद्रा विदाउट एनी कंप्लेंट. जहाँ जहाँ उसकी ट्रांसफ़र होती थी ना वो ईश्वरन उसके साथ बिना किसी शिकायत के उसके साथ जाता था. उसके लिए खाना बनाता था, वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, क्लीन हिज शेल्टर, घर की साफ सफाई, उसके लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, सब काम करता था. इन द लीजर टाइम और फ्री टाइम में ईश्वरन रीड तमिल थ्रिल स्टोरीज. वो स्टोरीज पढ़ता था तमिल थ्रिलर्स की. एंड दिस अफेक्टेड हिम सो मच दैट इवन अ स्मॉल इंसिडेंट लाइक अ फॉलन ट्री appeared to him a bushy beast. Ishwaran described everything in detail and weaved a new story full of thrill and horror to Mahendra every day. And we can say he played a role of a TV in Mahendra's life. उसके ऊपर तमिल थ्रिलर स्टोरीज़ का इतना अफेक्ट था, वो इतना प्रभावित था उन चीज़ों से कि उसको वो कोई भी बात बताता था ना महेंद्रा को, डेली एक नई स्टोरी बताता था और उस स्टोरी को इस तरह से इस डिटेल में एक्सप्लेन करता था, उसको इस तरह से बनाता था स्टोरी को कि वो कंप्लीटली इन्वॉल्व होकर लिसनर उस चीज़ को सुने. And it was literally full of, we can say it was literally it was literally full of horror, full of thriller, full of suspense and full of surprise. And literally he made very nicely. He presented each and every story in a very 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 best way. Or we can say he played a role of a TV in the absence of TV na, because TV was not there. So at the house of Mahendra, Ishwaran was a makeup artist who performed each and every role just like a TV. I hope you will understand. Next, Ishwaran now narrate a story of a tusker. In this chapter Ishwaran ने दो स्टोरीज एक्सप्लेन की. इट वॉज जस्ट मेड अप स्टोरी, खुद की मेकअप की हुई स्टोरी थी, बट स्टिल महेंद्रा वॉज कम्प्लीटली इंडल्ज इन दैट ही वॉन्टेड टू नो वट वॉज हैपन्ड एक्चुअली इन दैट. सो फॉर अ टस्कर वी कैन से वाइल्ड एलिफेंट. उसने एक स्टोरी सुनाई. वंस Ishwaran told Mahendra a story about his school days describing a tusker, wild elephant जिसको बोला जाता है, how he behaved when he got mad. महेंद्रा ने एक कहानी सुनाई उन दिनों की जहाँ पर we can say wild elephant की, कि how he behaved, कि वो कैसा behave करते हैं जब वो पागल हो जाता है. The tusker escaped out of a timber yard, destroying everything that came in his way. जो टस्कर था ना वो escaped out of a timber yard, destroying everything that came in his way. जो टस्कर था ना, जो हाथी था, वो एक दिन बचकर टिम्बर यार्ड से बाहर निकल गया. उसने सारी चीज़ें क्या कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी, जो भी उसके रास्ते में आ रही थी
सब चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी. इट एंटर्ड ईश्वरन स्कूल. और फिर एक बार क्या हुआ, वहाँ से वो निकल के सब चीज़ों को खराब करते हुए वो ईश्वरन के स्कूल में आ गया. एवरीवन देयर वॉज टेरिफाइड बट नॉट ईश्वरन. वहाँ पर सब डरे हुए थे सिवाय ईश्वरन को छोड़कर. He grabbed a can from a teacher's hand and faced the mad tusker boldly. उसने कैन लिया किसी टीचर के हैंड से और उसका मुकाबला करने के लिए चल पड़ा. He hit sharply with the cane onto the third toenail of the elephant and it shivered and collapsed. उसको क्या किया, ईश्वरन ने एक कैन से उसके ऊपर हिट किया और इतनी ज़ोर से हिट किया कि उसके पैर की थर्ड टॉय नेल पे वो लग गया. और वो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पहले तो वो स्टंड हो गया, बिल्कुल सुन. देन शिवर्ड, कांपने लग गया. एंड कोलैप्स्ड, और फाइनली वो गिर गया. एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी and Mahendra remained in a dangling situation. अब इस पॉइंट तक स्टोरी को सुना के, क्योंकि उसकी जो स्टोरीज होती थी ना वो थ्रिल होती थी. थ्रिल मतलब जहाँ पर बहुत सस्पेंस और सरप्राइज क्रिएट होता है. तो अब उसने क्या किया, यहाँ तक स्टोरी को बता के कि मैंने उसको मारा और फिर उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया और फिर वो कुछ और काम करने लग गया. अब महेंद्रा जो था वो बहुत ही डैंगलिंग सिचुएशन में था, कंफ्यूजिंग सिचुएशन में था कि व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ. सो इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ हिज प्रेजेंटेशन कि वो प्रेजेंट ही स्टोरी को ऐसे करता था कि सामने वाला सस्पेंस से अच्छे से क्रिएटिव हो जाए और वो उसका मन करे कि वो स्टोरी कंप्लीट होनी चाहिए. सपोज वी आर watching any movie on the TV and suddenly बहुत अच्छा सीन आ रहा है और उस सीन के बीच में and we are very suspended कि हम बहुत सस्पेंस में हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है. और एक्चुअली में हो क्या जाए, लाइट चली जाए, टीवी बंद हो गया, केबल चली गई. सो व्हाट वाज हैपेंड, वी ऑल आर इन डैंगलिंग सिचुएशन कि क्या हुआ होगा. वी आर वेरी क्यूरियस to know that what happened next. We have to see. Okay, so that situation is just with the same Mahendra, only by the Ishwaran's story, because his narration, because his presentation was literally very nice. It just depend upon the narrator. Okay, then Ishwaran narrates story of a ghost and now what was Mahendra's reaction. अब एक स्टोरी तो उसने सुना दी, ठीक है, उस स्टोरी को उसने बाद में कंप्लीट भी कर लिया. हमने बताया था कि उसने फिर बताया कि उसने एक वर्टिनरी डॉक्टर को बुलाया था और उस वर्टिनरी डॉक्टर ने उसको ट्रीटमेंट दिया और 2 days के बाद एक महावत को बुलाया और उस हाथी को उसको दे दिया. अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, क्लियर भी हो गया. अब क्या हुआ, अब हमने देखा था, हमने पढ़ा था कि वो उसको डेली कुछ ना कुछ स्टोरी सुनाता था. ही वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर महेंद्रा. सो उसका डेली का काम था उसको स्टोरी सुनाना. सो नेक्स्ट डे ऑल्सो ही नरेट्स अ स्टोरी ऑफ अ घोस्ट एंड नाउ व्हाट वॉज हिज रिएक्शन. ऑन अनदर ओकेजन, वन ऑस्पिशियस डे, एक बहुत ही शुभ दिन पर, ही वीव्ड अ स्टोरी, उसने एक कहानी बनाई. ही मेड अप अ स्टोरी ऑफ अ घोस्ट, भूत की, वुमेन, एक भूतनी की, होल्डिंग अ फोटस इन हर हैंड्स ऑन अ फुल मून नाइट, जिसके हाथ में एक फोटस होता है, कंकाल बच्चे का छोटा सा, पूर्णमासी की रात को. Mahendra asked him to stop telling him such nonsense stories, as Mahendra did not believe in ghosts and there are no such types of figures. अब महेंद्रा ने बहुत ब्रेवली उसको आंसर दिया कि
इस तरह की स्टोरी को सुनाना, ऐसी नॉनसेंस स्टोरी को सुनाना बंद करो। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है भूत पे, भूत प्रेत पे, और मैं नहीं मानता कि इस तरह की कोई चीज़ होती है। सो इट वॉज कम्प्लीटली अ फेक। आई विल आई एम नॉट interested in that. I was not interested. So actually what was the impact? अब हमने पढ़ा था कि महेंद्रा लिटरली ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड जो ईश्वरन उसको सुनाता था। अब एक तरफ से उसने बहुत ब्रेवली आंसर तो दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, आई वॉज नॉट इंटरेस्ट एंड दीज टाइप्स ऑफ फिगर्स आर नॉट देयर, बट स्टिल उसके माइंड में कुछ ना कुछ था कि वो कभी ऐसे तो कुछ नहीं बोलता। सो देन महेंद्राज एनकाउंटर विद घोस्ट, अब वाकई में उसका सामना हो जाता है उस भूत के साथ। नाउ इट इज़ वेरी वी कैन से दैट ह्यूमरस पॉइंट दैट आफ्टर अ फ्यू डेज महेंद्रा वॉज वॉकन, वी कैन से महेंद्रा वॉज वॉकन, महेंद्रा क्या करता है, एकदम से उठता है, ओके, एंड बाय सम नॉइस नियर हिज विंडो सिल ड्यूरिंग द नाइट, विंडो के सिल के पास उसको कुछ शोर सुनाई देता है। सो फर्स्ट ही थॉट दैट इट वॉज सम सॉर्ट ऑफ स्मॉल एनिमल लाइक अ कैट, बट द नॉइस बिकेम लाउडर एंड लाउडर। पहले तो वो ये सोचता है कि वो किसी कैट की, किसी बिल्ली की या किसी एनिमल की, किसी छोटे से जानवर की जो है वो साउंड है, बट द नॉइस बिकेम लाउडर एंड लाउडर। लेकिन जो वो नॉइस है ना वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अब उसके लिए उसको क्या होता है, बात तो कुछ भी नहीं थी, इट वॉज जस्ट नॉर्मल साउंड, बट स्टिल ही वॉज इम्पैक्टेड बाय ईश्वरन्स स्टोरी। सो फॉर दैट ओनली ही थॉट कि कहीं ये जो महेंद्रा ने ईश्वरन ने मुझे बताया था, क्या वो बात सच तो नहीं है, लिटरली ऐसा है कि ऐसा होता है। और दैट वॉज फुल मून नाइट ओनली, और वो थी भी फुल मून नाइट। सो ही वॉज वेरी अफ्रेड। सो वेन ही पीप्ड थ्रू द विंडो, जब वो विंडो के पास से झांक रहा था, ही थॉट दैट, उसने सोचा, ही सो अ क्लाउडी फिगर क्लचिंग अ बंडल नियर हिज विंडो सिल। उसने देखा कि बहुत घने बादलों जैसी एक आकृति सी है, बहुत सारे बंडल बने हुए हैं, एंड महेंद्रा कुड नॉट स्लीप एनी मोर दैट नाइट। वो क्लाउडी फिगर था, धुंधला सा कोई फिगर उसको दिखाई दे रहा था। एग्जैक्टली ही डिडंट नो व्हाट वाज एग्जैक्टली देयर, बट स्टिल ही वॉज इम्पैक्टेड बाय ईश्वरन स्टोरी। ही कुड नॉट स्लीप एनी मोर दैट नाइट, वो पूरी रात सो भी नहीं पाया। इन द मॉर्निंग ईश्वरन स्माइलिंगली आस्क्ड अबाउट द साउंड एंड द वुमेन घोस्ट। अब क्या हुआ, अगले दिन सुबह ही ईश्वरन ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि वो आवाज़ कैसी थी जो कल आपके रूम में से आ रही थी, और वो वुमेन घोस्ट कौन थी, हैव यू फेस्ड। सो ही ऑल्सो कंप्लेन्ड अबाउट हाउ महेंद्रा हैड चिडेड हिम द अदर डे। तो वो कंप्लेन करने लग गया कि उस दिन तो आप मुझे कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता, दीज टाइप्स ऑफ फिगर्स वर नॉट देयर, बट स्टिल हैव यू फेस्ड ना, हैव यू अनकाउंटर्ड। सो महेंद्रा वॉज वेरी अपसेट। देन what he decided, it was very foolishness decision, we can say. He completely trust that something was there, so he was literally very upset, and on the same day he resigned from his job and immediately left that space. So what was the conclusion, what should we say? Conclusion of Ishwaran the storyteller. The chapter Ishwaran the storyteller illustrate a lesson that we should not carried away by stories shared by other people or assume it as reality. ईश्वरन द स्टोरी टेलर ये हमें ऐसे सीख देता है कि हमें किसी की बनी बनाई बातों में नहीं आना चाहिए, ना सुननी चाहिए। सिर्फ जो एग्जैक्ट रियलिटी आपके सामने होती है उसी को ही मानना चाहिए।
वी शुड अप्लाई आर ओन विट, हमें अपना खुद का दिमाग चलाना चाहिए, खुद की बुद्धि यूज़ करनी चाहिए, एंड बिफोर वी सी इट विद आर ओन आइज, हमें उसी बात पे यकीन करना चाहिए जो हम अपनी खुद की आंखों से देखें। डोंट बी क्विक टू बिलीव वट यू हियर, कभी भी इतनी जल्दबाजी पे विश्वास नहीं करो किसी से कि जो आप सुनते हो, बिकॉज लाइज और ह्यूमर्स स्प्रेड फास्टर देन द ट्रूथ, क्योंकि झूठ और ह्यूमर्स सच से ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। सो आई होप you will understand what I am present to you. Okay, I think you will understand. I hope for your best it will be help. So if you like it, kindly share, like and subscribe our channel, the Nagin Best Digital Learning. So here we are taking bye bye. So thank you, have a nice day.